rahmatullahi wa barakatuh. I would like to welcome you all to the channel Nurture with Dr. Shafiq. This channel is dedicated to empowering families and communities by addressing vital aspects of child's life, including education, health, growth, parenting, career planning, and counseling. The vision of the channel is simple yet powerful. Stronger families build stronger nations, and nurturing children with the right values today creates compassionate, resilient, and responsible leaders for tomorrow. Now, it is my honor to introduce the person behind this initiative, Dr. Shafiq, pediatrician, child psychologist, certified parenting coach, life coach, emotional quotient practitioner, NLP practitioner, and counselor. With his vast expertise and passion for holistic child development, he has dedicated his career to guiding families and inspiring the next generation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my absolute pleasure to introduce Dr. Sarvath Adil Khan, an accomplished educational psychologist, academician, and passionate changemaker in the field of inclusive education. Dr. Sarvath Adil Khan is the founder and managing trustee of the Learning Point Foundation, Bengaluru, where she has transformed lives by enabling over 1,700 students to re-enter formal education and helping more than 2,000 individuals gain meaningful employment. With a strong academic foundation including a PhD in educational psychology and extensive experience in psychology, English, and educational leadership, she has been at the forefront of empowering underserved communities. She has played a pivotal role in implementing NIOS programs for school dropouts and madrasa students, developing English communication, computer literacy, and soft skills training modules, and mentoring teachers through structured training programs. Her work beautifully bridges education, psychology, and social impact. Her journey stands as a powerful reminder that education is not just about learning, but about restoring hope, dignity, and opportunity. On behalf of Nurture with Dr. Shafiq, it is truly an honor to welcome Dr. Sarvath Adil Khan to our channel. We are delighted to have her share her insights, experiences, and wisdom with our audience, and we look forward to an enriching and inspiring conversation. Welcome to Nurture with Dr. Shafiq, Dr. Sarvath. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Aslam. Can We you are see grateful this? to have you with us. I'm just trying to stop screen sharing. अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज के इस टॉपिक आज के जो प्रोग्राम है, आज का जो टॉपिक है, बेसिकली जो स्कूल ड्रॉपर्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, और इस रास्ते पर हम कैसे गामजन हो सकते हैं, क्या क्या हमें मौके हो सकते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस बारे में हमें आज बात करनी है। मैम, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आसान लैंग्वेज में, उर्दू हिंदी में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रॉपआउट्स होते हैं वो अंडर प्रिविलेज, लेस प्रिविलेज एरिया से आते हैं, तो और कम्युनिटी लीडर्स तक भी बात पहुंचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उर्दू या हिंदी में हम बात करने की कोशिश करें। जहां बिल्कुल ही इनएविटेबल है, आप इंग्लिश टर्म्स यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। पता है कि एक इंस्टीट्यूशन चलाना कितना मुश्किल होता है, इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल, यू नो, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, हम आपके बहुत आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं। मैं नाज़रीन को बता दूं
कि शुरू में जो इंट्रोडक्शन आया था, चूंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो हमने थोड़ा उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंट्रोडक्शन किया, लेकिन ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि सरवत मैम की जो जर्नी है वो भी वैसे वो अपने अल्फाज में बताएंगे। मैं ब्रीफली आपको कहना चाहूँगा कि वो खुद एक स्कूल ड्रॉप आउट थी। फिर उसके बाद उन्होंने जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया और क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर कामयाबी कैसे आती गई और उनका विजन क्या है, ये सारे चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात जैसे आगे बढ़ेगी तो चीज़ें आती जाएंगी। आप भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सरवत मैम, हम शुरू में आपसे जानना चाहेंगे कि भाई थोड़ा आपका जो लर्निंग पॉइंट फाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं ताकि हम वहां से शुरुआत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अगेन। तो लर्निंग पॉइंट एक इंस्टीट्यूट जो मैंने फाउंड किया था 2018 में, जो टैनरी रोड, जो हमारा नॉन स्लम एरिया है, यहाँ पे आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसको NIOS के थ्रू से हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि स्किल बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग या फिर कंप्यूटर्स ट्रेनिंग, बच्चों को इंटरव्यू कैसा क्रैक किया जाए, इस पे वी विल फोकस एंड वी विल स्टार्ट विद एंड वी विल ट्रेन ऑन द लैंग्वेज, एंड इस पे हम लोग काम स्टार्ट किए थे। बट जब हम लोगों को सर्वे मिला, जब हम लोगों को रेज्यूम्स मिले, जब हम लोगों को स्टूडेंट्स मिले जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, बट द सैडेस्ट पार्ट वहां पे ये देखने को मिला कि 100 में से 99 बच्चे जो हैं, दे हैव नॉट पास्ड इवन द 10th एंड 12th, एंड दे हैव, अभी उनको जॉब्स के लिए इतना डिफिकल्ट था कि इवन डिलीवरी जॉब्स के लिए दे रिक्वायर्ड बिट ऑफ लैंग्वेज, और 10th एंड 12th होना ये जरूरी था। देन वी वेंट इनटू रिसर्च ऑफ NIOS, वेयर हम लोगों को NIOS 2019 में मिला, एंड वी अप्लाइड फॉर 6 स्टूडेंट्स, जो 2 सिंगल मदर्स थे एंड 2 हाफिज बच्चे जो हमारे मदरसे के थे, एंड जो 2 ड्रॉप आउट बच्चे थे। तो वी वांटेड टू नो ये बच्चों का कैसे होगा, क्या होगा बोल के। देन वी स्टार्टेड रिसर्च अबाउट NIOS, एंड 2020 में वी अप्लाइड दो स्टूडेंट्स। मैं यहाँ एंड नाजरीन टुडे, को बताना, जी सॉरी, मैं नाजरीन को बताना चाहूंगा कि सरवत मैम ने जो 6 स्टूडेंट्स के बारे में बात की, आई थिंक 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी के बताई। एक तो मदर्स थी, हाँ माएँ थी जो घर पे बैठी हुई थी, और 2 मदरसे के बच्चे थे, और जो है 2 स्कूल ड्रॉपर्स। तो 3 डिस्टिंग्विश कैटेगरी हैं जो आगे हम उन पे बात करेंगे। बहुत अच्छा हाँ किया आपने कैटेगरीज को, ताकि लोगों को पता चले कि भाई शादी होने के बाद या घर बसाने के बाद तालीम के दरवाजे बंद नहीं होते, और नहीं उसकी होते, आप नहीं जिंदा होते। मिसाल आप खुद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वहां से जाके जब हम लोगों ने स्टार्ट किए, तो इमीडिएट जब पता चला स्टूडेंट्स को, तो 6 से डायरेक्ट 6 मंथ्स के अंदर 36 स्टूडेंट्स थे। तो 36 स्टूडेंट्स से जब वो ये जो नंबर्स है, ये ईयर नहीं लगा, 6 मंथ्स में नेक्स्ट बैच वी हैड 100 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 455 स्टूडेंट्स है, 452 स्टूडेंट्स है जो एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, जो ये 10th एंड 12th है। एंड एवरी ईयर वी आर लाइक, स्टूडेंट्स जब हमारे पास आ रहे हैं तो 1 ईयर इट्स लाइक अ ब्रिज फॉर देम। ये ब्रिज में वो जो छूट गया था बच्चों से, वो लेके नेक्स्ट फिर से उनको सिस्टम में डाल रहे हैं कि यू गेट इनटू PUC, यू गेट इनटू पैरामेडिकल कोर्सेज, यू गेट इनटू डिप्लोमा, यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। पहले जैसा नहीं है, अभी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक समंदर जैसा दुनिया आ गया है आपकी, बस ये एक ब्रिज क्रॉस करके आप निकल पड़ो। तो इस सिलसिले में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 स्टूडेंट्स से आज 452 स्टूडेंट्स हम लोग काम कर रहे हैं। एज वेल वी वर्क विद मदरसास, मदरसे स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देयर आल्सो वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, माशाल्लाह। क्योंकि हम लोग मदरसे में ऐसा है कि मदरसास आर डूइंग देयर एक्सीलेंट जॉब नर्चरिंग द स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, एंड दे ओनली रिक्वायर्ड वन सर्टिफिकेट टू शो दुनिया कि हम लोग दुनिया में भी कुछ कर सकते हैं। सही सही। तो वो एक सर्टिफिकेट वो लोग मिस कर रहे थे। जी तो नाउ माशाल्लाह। दैट अभी ये देख रही हूँ कि मदरसे के बच्चे भी मदरसे के स्टडीज के साथ एकेडमिक्स में भी एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, जी नीट क्रैक कर रहे हैं बच्चे, दे आर गोइंग अहेड
and doing some amazing courses. BSc data science कर रहा है बच्चा. So that's something which makes me, चलो ठीक है, this is what is required. ये चीज हमारे लिए जरूरी था. आज हमारे पास एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे भी हैं जो कम फ्रॉम ये जो बच्चे 7th में 8th में ड्रॉप हो गए ड्यू टू सम नेग्लिजेंस. ये एक बहुत अच्छी चीज, पता नहीं मैं गलत हूं या सही हूं, मुझे नहीं पता. जो मैंने एरिया में रिसर्च किया है हमारे एरिया में, ये देखती हूँ कि एवरी छोटा रीजन, घर पे कुछ शादी है, कुछ भी है, बच्चा स्कूल से पहले ड्रॉप होगा. वी डोंट वांट टू पे. तो ये बहुत ऐसा रीजन बन गया. एजुकेशन सबसे पहले गिव अप, छोड़ दो, ये इसको छोड़ दो, तू बेटा काम को चले जा. हमारे घर पे कुछ बीमार हो गए, माँ बाप बीमार हो गए, कुछ भी रीजन, कुछ भी छोटा रीजन के लिए बच्चा ड्रॉप कर देता है. तो वो बच्चे भी नाउ, आज वो बच्चे वापस आ रहे हैं. हाफ अ डे वो काम करके, ऐसा नहीं कि काम छोड़ रहा है बच्चा, काम भी करके अपने फैमिली का भी देखभाल कर रहा है. हाफ अ डे वो बच्चा आके पढ़ रहा है, एंड वो बच्चे हाफ अ डे अगेन काम करके डिग्रीज तक पहुंच गए. तो अभी नेक्स्ट वो बच्चों का फ्यूचर डिफरेंट होगा. इस सिलसिले में ये चीज हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रहा आपका. मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने 6 बच्चों से शुरुआत की और विद इन स्पैन ऑफ आई थिंक 5-6 इयर्स आप 450 तक पहुंच गए. तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? भाई आपको क्या ऐसी चीज मोटिवेट की कि भाई हाँ, आई शुड वर्क इन दिस लाइन? ऐसा क्या था? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? एक्चुअली स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू ना, द नीड ऑफ हार्म वाज द पॉइंट. हाँ, ये स्टार्ट करने के लिए व्हेन पीपल आस्क मी व्हाट इंस्पायर्ड यू, दैट वाज माय ओन थिंग. बिकॉज मैं खुद 12th आई हैड कंप्लीटेड. स्कूल से नहीं ड्रॉप करी थी मैं. 12th कॉलेज जब मैं कंप्लीट करी, PUC, आई वाज मैरिड. Being a good student and very good learner and all, I was married and I had, the family continues, and that's what we middle class people have. वो ही है हमारे middle class का कि लड़की है, 12th कर ली, अब इसको शादी कर दो and all those XYZ. But after my दो बच्चों के बाद I started my studies back. I was a science student, but science मुझे continue नहीं कर सकी because I had 2 children in my hand, small kids. In-laws, husband, everything was there on my shoulders. So I started my journey with BA in English and psychology. Then B.Ed, then Masters. Now, Alhamdulillah, I completed my PhD. So that itself inspired me. जब मुझे मेरे husband encourage करे कि you can get into studies, you can do something for yourself. I was in research कि मैं क्या करूँ. But still, Alhamdulillah, I had learned first language Kannada. That was the advantage. I went into Bangalore University. Because I had to talk in Kannada, because I had to get in there, and somewhere I need to thank my parents to build that confidence in me कि चलो, she can do something. So I had that boldness to get into the university and check. But यहाँ पे students नहीं जाते. They don't leave area. They don't want to go and see what is happening outside this area. So that facility I wanted to get in this एरिया कि यू डोंट रिक्वायर टू गो, अब बाहर ढूंढने मत जाओ मेरी तरह. आई टुक 1 year व्हेन माय हस्बैंड एनकरेज्ड. 1 साल में ली टू रिसर्च वेयर आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, क्या कर सकती हूँ मैं बोल के. दैट आई वांटेड टू सर्व फॉर दिस पीपल देयर. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स माय इंस्पिरेशन. एंड यहाँ पे जब स्टूडेंट्स रैपिडली इंक्रीज हुए कि we didn't go and call the students, we didn't go and do the marketing. वो बच्चे खुद आके मुझे पढ़ना है मैम, and the strength was growing. That made me कि no, this is the need of her. अभी इस पे काम करना है. वहां से we started. अल्हम्दुलिल्लाह, it's going on. मैं यहाँ नाजरीन को बताना चाहूंगा कि 2-3 पॉइंट्स जो मैं मैम के बात से निकाला, वो ये कि अक्सर जो है मिडिल क्लास में मतलब ऑल्दो द सिनेरियो इज चेंजिंग, लेकिन अक्सर ये होता है कि हाँ, बच्ची को जो है थोड़ा बहुत पढ़ा के वैसे भी शादी करके देना है, तो क्यों ज्यादा खर्च करें या उस पर ज्यादा हेडेक लें. तो समहाउ दे गेट मैरिड एंड देन फिर जैसा आपने बताया कि लाइफ कंटिन्यूस. लेकिन यहाँ 2-3 चीजें रही. एक, उन्होंने शादी के बावजूद, बच्चों के बावजूद जो सोच रही थी कि भाई मेरी तालीम को आगे कंटिन्यू करना है, और उन्होंने किया भी कि सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, सिर्फ 1 नहीं 2 हैं, फिर उसमें PhD, विच इज नॉट वेरी कॉमन थिंग हमारे यहाँ.
तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। दूसरी बात जो है, उन्हें जो घर में जो सपोर्ट मिला बोथ फ्रॉम द पेरेंट्स साइड एज वेल एज द हस्बैंड, तो ये भी एक हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी में इन चीज़ों को हाईलाइट करने की जरूरत है कि भाई जहाँ चाह है वहाँ राह है। भाई आप वो व्हेन शी इज विलिंग, वी शुड अप्रिशिएट एंड देन सपोर्ट इन वॉट एवर पॉसिबल मैनर, ताकि तालीम का सफर रुक न जाए। ठीक है, ये एक चीज होगी। दूसरी जो कम्युनिटी लीडर्स को हमें यहाँ हाईलाइट करने की जरूरत है कि हम अक्सर जुमा में फ़िक़ही मसाइल डिस्कस करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अगर हम जुमा के खुतबे में हाईलाइट करें तो बहुत से लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। खास करके स्कूल ड्रॉप आउट्स जो हो रहे हैं, और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स के जो मसले मसाइल हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं। बेकारी जब आती है तो उसके साथ बहुत से मसाइल आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर ड्रग एडिक्शन तक भी बातें पहुंच रही हैं, और आप सब मोहल्लों के जो हालात हैं आप वाकिफ हैं। तो यहाँ इस मसले को हम क्यों एड्रेस कर रहे हैं, उसकी अहमियत यही है कि इन बच्चों को किसी मुनासिब और मसरूफ रखने का जो एक तरीका हो सकता है, उनको स्कूल के सिस्टम में मेन स्ट्रीम में वापस लाने का। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि एक जर्नी उतना आसान नहीं है ये, जो भी आपने शुरुआत की, फिर जो है अपने तालीम भी जारी रखी, फिर बाद में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, फिर उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती गई, फिर उनके चैलेंजेस आप फेस करते गए। तो ओवरऑल एक जब एक नई चीज लेके कोई समाज में उड़ता है तो बहुत से चैलेंजेस फेस करनी होती हैं, खुद अपने लोगों से, बाहर से, लॉट ऑफ चैलेंज। तो आपको ऐसे क्या चैलेंजेस फेस हुए कि भाई हाँ, इट वाज नॉट ए स्मूथ राइड फॉर यू? जी, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, यस, हमारे कम्युनिटी लीडर्स आल्सो वी हैड टू फेस चैलेंजेस, बिकॉज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे तब, जब आई कैन टेल यू बिफोर 2020 में, कि अभी मदरसे के बच्चे इंग्लिश पढ़ के क्या करेंगे। बट आई डोंट नो, फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम मुझे एक चीज थी कि मदरसे के बच्चे जो है 10th 12th दैट केम इन, दैट वो आगे ऐड ऑन, बट एक लेटर नहीं लिख पाते, एक ये नहीं पढ़ पाते। व्हाई डोंट वी टीच देम दैट एक सब्जेक्ट के जैसा? बट डोंट नो हाउ इट इवॉल्व। बट स्टार्टिंग में मेरा जो स्टार्टिंग बैच था 36 स्टूडेंट्स का, उसमें हमारे बहुत सारे मदरसे के इंचार्जेस एंड टीचर्स थे जो हमारे स्टूडेंट्स थे। जी जी। तो दे लर्न इट इज इजी, तो वो जाके अपने अपने मदरसों में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, तो वहां से थोड़ा बहुत इजी हो गया। हाँ, फिनेंशियली इट इज अ वेरी बिग चैलेंज व्हेन इट कम्स टू सर्विंग आवर कम्युनिटी। बहुत बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किया था उस टाइम पे। आई डिडंट बॉदर फॉर एनीथिंग, नहीं मुझे करना है तो करना है। तो वी डिडंट गेट एनी सपोर्ट एंड ऑल, बट धीरे 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 व्हेन आई वाज सपोज टू गिव अप, आई गॉट वन पर्सन एज माय मेंटोर, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। तो ही टुक ओवर कि नो नो नो, एंड ही अंडरस्टूड कि ये नहीं, ये करना है। लाइक यू टोल्ड, जहां चाह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अल्लाह वांटेड माइट बी ये चीज चलना है, ये लोगों को देना है बोल के। एज वेल वी वर्क विद ऑर्फनेजेस, वी वर्क विद दिस। आई टोल्ड, आई थिंक व्हेन वी मेट आल्सो आई टोल्ड यू, आई डोंट वांट टू वर्क विद रैंक स्टूडेंट्स। रैंक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जगह वो बना ले, लाइक आई डिड। तो कहीं ना कहीं वो अपनी खोज, वो दे डोंट स्टॉप। अभी यहाँ पे ये वक्त है, ये नीड ऑफ हार है हमारी कम्युनिटी में। जो बच्चे छूट रहे हाथ से, फेल्ड होके छूट रहा है, ड्रॉप आउट होके छूट रहा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं होते हुए छूट रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजन की वजह से छूट रहा है, ये बच्चों को हाथ पकड़ने का, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फेस ऑफ आवर लाइफ, जहां पे हम लोग इन लोगों को हाथ पकड़, जी। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपने एक रैंक वाले बच्चों की जो बात की, मेरे जहन में इमीडिएटली कुछ आया, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है, जो हायर रैंक्स की तरफ जो बच्चे आते हैं, यानी जो मार्क्स ज्यादा लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप देके या अट्रैक्ट करके समहाउ दे वांट टू एनरोल इनटू द इंस्टीट्यूशन, ताकि उनका अपना मार्केटिंग हो या जो भी हो। असल जो बच्चों पे काम करना है, वो जो पीछे रहते हैं उन पे काम कर। असल आपकी जो मतलब क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहाँ पता चलती है कि भाई जो
कम परफॉर्म कर रहे हैं, जो पीछे रह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। yes, तो the ये foundation. दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड जो, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो बड़े इदारे हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं, जब वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं तो थोड़ा बहुत एज ए CSR कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, तो फिर वो कुछ ड्रॉप आउट्स को या मरसंग बच्चों को लेके मेन स्ट्रीम में लाने की वो कोशिश करते हैं। तो उनमें और आपके सेंटर में क्या फर्क है? See, मैं एक चीज, एवरीबडी आर डूइंग देयर ओन जॉब। यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट डूइंग, ऐसा नहीं। अपनी अपनी जगह में हर कोई अपना अपना कर रहा है। और वेयर मैं यहाँ पे वेयर आई वाज फाइटिंग विद द कम्युनिटी एज वेल एज सम एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, मुझे किसी के अंडर नहीं जाना था, क्योंकि आई वाज अ कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ट्रेनर। तो मुझे कैम्ब्रिज का करिकुलम यूज करके इनको जो लैंग्वेज सिखा रहे थे एंड द कॉन्फिडेंस जो हमारे बच्चे बाहर लेके जा रहे हैं। आज विडोज आर वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, इट्स ओके, कॉल सेंटर्स में कर रहे हैं या फिर दे आर अर्निंग, अपने लिए खुद कमा रहे हैं। एंड वी फोकस मच ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चा 1 साल में निकल रहा है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाके बैठना, रेगुलर बच्चों के साथ डील करना, दैट वाज अवर चैलेंज फॉर नॉट ओनली मी। एक्चुअली ये चैलेंज पे मेरा सबसे ज्यादा काम करती है मेरी टीम, जो हर कोई अपना अपना एक्सपर्टाइज लेके आती है। एंड वी आर मैक्सिमम टीम ऑफ वुमेन हु आर इवन वर्किंग विद मेन। तो वहां पे थोड़ा सा आई गिव 100% क्या बोलते क्रेडिट टू माय टीम हु वाज वर्किंग बिहाइंड मी फॉर दिस थिंग। तो वो एक चैलेंज था, दैट इज समथिंग दैट ये बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है 10th के लिए, 11th के लिए बाहर PUC के लिए जाके बैठने लायक काबिल बने, 12th के लिए आ रहा है डिग्री के लिए जाना है बच्चा या फिर जॉब के लिए जाना है, ये हमारा चैलेंज रहता है हर साल। दैट मेक्स अस आई थिंक सेपरेट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस वेयर वी डोंट वांट बच्चा 1 साल हमारे साथ ही रहे, 3 साल आ गया तो 3 साल हमारे साथ रहे, वी डोंट वांट, लेट देम गो, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट वी वर्क विद। जी। गुज़िश्ता आई थिंक अबाउट 2 weeks बैक एक बुक फेयर जाने का मौका मिला, जो ज़्यादातर औरतें ही या लड़कियों ने मिलकर अरेंज किया था। और वो सुनने के बाद और आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट भाग जाऊं, ठीक है ना? तो हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे ख्वातीन जो है नहीं, द गुड थिंग इज आज मैं ये देख रही हूँ कि इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, इवन बॉयज। गर्ल्स से ज्यादा आई फोकस मच ऑन बॉयज मदरसास वी हैव, यू नो। आज तक हम लोग वुमेन वुमेन बोल के वुमेन को समहाउ आई टुडे आज मेरे पास हर साल मदर्स आ रहे हैं एंड यू नो हस्बैंड्स आर ब्रिंगिंग एंड एनरोलिंग देम, मेनी आर सिंगल मदर्स, आई एग्री फॉर दैट। widows we have that also I agree because women are not giving up, somehow कर रहे हैं। एंड ये जो मेन है, ये बच्चे भी आर गेटिंग इनटू रेगुलर स्ट्रीम। एंड जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चैलेंजेस उनके साथ होता है, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है एंड ऑल, बट द रिजल्ट्स व्हिच वी आर गेटिंग टुडे, आज वो जो बच्चा था आज वो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है एंड और BPT फिजियोथेरेपी में है हमारे बच्चे, आज जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, जो कभी स्कूल उनके लिए एक सपना था, आज एक कबाब शॉप का बच्चा, आज ही इज इनटू लैब टेक्नीशियन। तो वो चीज मेक्स मी सिट होल्ड ऑन दिस चेयर कि चलो ठीक है, दिस इज व्हाट इज नीड रिक्वायर्ड। आपने बॉयज के बारे में बात की, तो मैं सोच रहा था कि भाई अक्सर जो है लड़कियां, मतलब अगर सपोज वो रेगुलर स्कूल में पढ़ रही हैं एंड यूजुअली दे परफॉर्म बेटर देन द बॉयज, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट जनरली ऐसा है। तो इवन जब SSLC के रिजल्ट आते हैं या PUC के रिजल्ट आते हैं, तो गर्ल्स का जो परसेंटेज होता है यूजुअली हायर देन द बॉयज। तो यहाँ एक तो ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि जब लड़कियां शादी की उम्र आती हैं तो उनके मुनासिब बॉयज नहीं मिलते हैं, मतलब इक्वली एजुकेटेड या बेटर एजुकेटेड, ये एक दूसरा मसला है। तीसरा चीज जो है, ये बच्चे जो बॉयज जो है वो अपने आप को अपस्किल नहीं रखते हैं, तो फिर वो ड्रॉप आउट होते हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर स्ट्रीट बॉयज बन जाते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा आपसे, खास करके हमारे एजुकेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स भी इस बात को सुन रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या अर्ली साइंस हैं, ऐसे कुछ निशानियां हैं कि भाई
एजुकेटर हो या पेरेंट्स हो या कम्युनिटी लीडर्स हो आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बच्चा या बच्ची जो है वो टुवर्ड्स स्कूल ड्रॉप आउट बनने के रास्ते पर है, यानी सूनर और लेटर ये स्कूल ड्रॉप आउट बनेगा या फिर इसका इंटरेस्ट जो है स्कूल में कम हो रहा है, ऐसे क्या कुछ निशानियां आप बताना चाहेंगे ताकि पेरेंट्स भी अलर्ट हों और कम्युनिटी भी अलर्ट हो जाए? Whether यहाँ पे एक चीज what I am noticing again, I don't know whether if I'm wrong or right, मदरसे में बच्चा ड्रग एडिक्ट नहीं हो रहा है, एंड एवरीबडी वी इंक्लूडिंग मी वी आर बिहाइंड मदरसे के बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे में बच्चा या उनके लिए जरूरी है एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने से दे आगे बढ़ रहा है बच्चा। बट यहाँ पे वेर यू टोल्ड मी एक साइन जो मुझे देखने को मिलता है, दैट इज समवेयर स्कूल्स एंड ट्रेनर्स, टीचर्स, लोकल स्कूल्स हमारे जो है वो बच्चे टीचर्स, मैनेजमेंट टीचर्स प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर रही है, एंड इट्स अ नीड ऑफ आर, हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं या फिर जो हमारे सोशल सर्विस में है या फिर जो पेरेंट्स है, एजुकेटेड पेरेंट्स, ये टाइम पे एटलीस्ट मैनेजमेंट से एक सवाल करे कि टीचर्स कैसे हैं आपके पास। जहां बहुत सारे स्कूल्स के साथ जहां पे मैं काम करती हूँ, बहुत सारे मैनेजमेंट को मैं सीधे सीधे ये बोल देती हूँ कि देखो भाई, इफ यू आर हायरिंग अ प्रोफेशनल दे विल प्रोड्यूस प्रोफेशनल्स, इफ यू आर हायरिंग अ लेबर दे विल प्रोड्यूस लेबर। तो जहां पे टीचर्स है, टीचर्स डेवलपमेंट अगर हम लोग कर लिए ना पैरेलली, चाहे कम्युनिटी लीडर्स हो या फिर कोई भी हो, वी कैन ब्रिंग द चेंज एंड ड्रॉप आउट रेट विल कम डाउन। एक तो हम लोग स्कूल सेपरेट कर लिए, हम लोगों का स्कूल सेपरेट है, हम लोग इस्लामिक स्कूल्स को ही जाना है, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स को ही जाना है, मुझे बुरखा पहन के स्कूल को जाना है, मुझे टोपी पहन के स्कूल को जाना है, तो ये हम लोग सेपरेट कर लिए। बट व्हाट इज द क्वालिटी वी आर गिविंग? तो वो क्वालिटी पे अगर हम लोग काम कर लिए ना, दैट इज द मेन साइन वेयर पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर, इवन कम्युनिटी लीडर शुड लुक आफ्टर कि हमारे इलाके में स्कूल है, ये स्कूल में बच्चे कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल में क्वालिटी क्या है। ये अगर हम लोग देखना शुरू कर दिए ना, तो वी डोंट रिक्वायर हम लोग हर स्ट्रीट को जाके बच्चे को लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां तक मेरी समझ है। अब आगे पता नहीं क्या है। अक्सर जब हम देखते हैं कि जो स्कूल ड्रॉपआउट्स के रीजंस हैं उसमें मतलब अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो अक्सर क्या होता है कि शुरू में जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से आते हैं, यानी आइदर दे हैव डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इस तरह की चीजें हैं, या फिर बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में है, या फिर बच्चा जो है एडीएचडी का उसमें जाता है, तो ये अक्सर या तो हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं है कि इन बच्चों को कैसे डील करें, या फिर आउटसाइड द स्कूल ना ही उस इलाके में स्पेशल एजुकेटर्स हैं। तो इस तरह की चीजें होने से क्या होता है कि बच्चा ही गोज अनरिकॉग्नाइज्ड कि भाई इसको कुछ लर्निंग प्रॉब्लम, समहाउ ग्रेड बाय ग्रेड उसको ढकेलते हैं, व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशन आता है तो वो फेल होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ही कैन नॉट गो फर्दर। तो यहाँ पर जब लेट्स से 10th या 12th यहाँ फेल होता है तो फिर वो उसका रास्ता बंद हो जाता है। तो ऐसे क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं? एक्चुअली यहाँ पे आइडियल मतलब हर साल मुझे कम से कम 10 बच्चे मिलते हैं ब्रदर, वो आर कमिंग फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छी फैमिली से आ रहा है, अच्छी स्कूल्स में दाखिला हुआ है बच्चों का, एंड 9th में 10th, एक दो बच्चे हैं जो 10th में तीन तीन सब्जेक्ट सॉरी थ्री अटेम्प्ट्स में जीरो मार्क्स आए। उन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करने से दे आर गेटिंग 85%। तो ये टीचर्स को ट्रेन करना जरूरी है, जैसे आपने बोला कि ये बच्चों के साथ कैसा डील किया जाए, या फिर यू डू पेरेंटिंग वर्कशॉप, पेरेंट्स को मालूम होना है मेरे बच्चे में कुछ ऐसा है जहां पे मुझे इसको या फिर एक्स्ट्रा एजुकेटर की जरूरत है या फिर कुछ और चीज की जरूरत है। सो आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट इंशाल्लाह इस साल कि वी विल पुट अ वर्ड फॉर द स्कूल्स। यूजुअली हम लोग स्कूल्स में जाके सीधे सीधे क्या बोलते, जो बच्चा आपसे नहीं पढ़ पा रहा है गिव इट टू अस, वी विल ट्रेन। तो हर जगह पे ये होना जरूरी है कि कोई जाए हम जैसा सर खपाए वहां पे बच्चों पे कि ये बच्चा पढ़ेगा, तो दैट इज रिक्वायर्ड। जी, जब बच्चे 10th या 12th फेल होते हैं तो लोगों के जहन में होता है कि हाँ फिर तो रास्ता बंद है। आप जैसे कहा कि भाई ठीक है, अगर उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं या अदर पर्सनल चैलेंजेस हैं तो दे शुड कम फॉरवर्ड विद एंड देन डिस्कस विद द इंस्टीट्यूशन कि भाई हाउ बेस्ट वी कैन यूटिलाइज।
लेकिन थैंक कहीं ना कहीं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे जो उलमा हैं या मस्जिद के इमाम हैं या मुतवल्ली हजरात हैं, या सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो ये लोगों में इस बात को लेके कोई आपको लगता है कुछ दर्द है लोगों के अंदर, या मतलब कुछ लिप सर्विस हो रही है बस? अगेन क्लियर। हाँ, मतलब ये जो मसले मसाइल हैं, इन सब को लेके हमारे उलमा या मस्जिद के इमाम हजरात या मुतवल्ली हजरात या कम्युनिटी लीडर या पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं, जो अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी, उनके अंदर इन चीजों को लेकर दर्द है, या वो चाहते हैं कि उनके पीछे कोई जय जयकार करने वाले कुछ लोग अनएम्प्लॉयड इस तरह के हों? I don't get into the politics. I don't, मुझे politics में भी नहीं जाना है. I don't get into the उलमास की strategy also because I work with all तबके का मदरसा. हर कोई मुझे सबके साथ काम करना है. I don't divide that. मतलब ये जमात से है, ये जमात से है. But somewhere leaders now अभी I don't know about politics, but leaders में थोड़ा बहुत concern आया है कि ये बच्चे आगे बढ़ जाए. Because madrasas opening, boys madrasas opening a woman to come in and teach वहां पे, and madrasas नहीं भी हम लोगों को भी पढ़ा दो, ये थोड़ा बहुत लीडर्स में आया है. Because leaders खुद वो फेस कर रहे हैं, मतलब लीडर्स खुद वो क्या बोलते हैं, irrespect जो उनके साथ हो रहा है वो फेस कर रहे हैं. But when it comes to dropouts and ये जो हमारे community leaders है, they can do और बहुत कुछ कर सकते हैं. When it comes to minority or departments, they can do wonders. हम लोग छोटा बहुत कर रहे हैं, तो अगर वो कर सके तो बहुत बड़े इस पे कर सकते हैं. They have to. If they get the chance, they have to. जी, जब बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स क्या, मतलब उनकी तरफ से क्या गलतियां होती हैं कि बच्चे का जो फर्दर तालीमी सफर है वो रुक जाता है? ऐसे क्या कुछ चीजें हैं? जी। या फर्स्ट रीजन जो मैंने बोला, स्कूल्स को नहीं जाके देखते हम लोग कि हम लोग टीचर कैसी है, बच्चे पे ही प्रेशर पड़ता है. हम लोग बच्चा तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, तू क्यों छोड़ रहा है, बट ये नहीं जाके देख रहा है कि किस क्वालिटी की टीचर है बच्चे को पढ़ा रही है. दैट इज द मेन रीजन. सेकेंड रीजन, हमारे बहुत सारे जहां पे मैं काम करती हूँ, टीचर हर लियो, केजे हर लियो, एजुकेशन बोले तो पढ़ने, यू नो पेरेंट्स, मुझे आई नीड टू डील विद द पेरेंट्स हु से पढ़ के भी तो 15,000 कमा लेते, नहीं पढ़ के भी तो 15,000 कमा लेते. ठीक है, तो उसको मुझे बैठ के ये एक एग्जाम्पल, एक फिश मर्चेंट था मेरा पेरेंट, बच्चा वांट टू स्टडी एंड दिस फादर इज टेलिंग मैंने ऑलरेडी बिजनेस सेट किया हुआ है, क्यों ये पढ़ेगा. तो उसको मुझे समझाना पड़ा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ब्रांडेड लिशियस क्या कर रहा है, हाउ दे आर सेलिंग आउट. सो वो चीज लाने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज होना, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में वर्क. एंड एक और रीजन है जहां पे हमारा जहां मैं देखती हूँ लड़कियों का, जैसे आपने बोला व्हेन शी इज 10 और 12, जब बच्ची 10 और 12 को जाती है, घर पे कोई उसका फ्यूचर नहीं डिस्कस करेगा, कोई उसका करियर नहीं डिस्कस करता है. इसको लड़का कैसा मिलेगा, ये मुझे ये लेके जमाना है, इसको शादी करना है, शादी के पैसे इकट्ठा करना है. एंड समवेयर गर्ल्स विल लूज दैट कॉन्फिडेंस, मुझे पढ़ना नहीं है. मदरसे के बच्चे बहुत बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं, व्हेन आई टेल देम बाहर जाके क्या कर रहा है, शादी करना है मैम, शादी के लिए तय हो गया है. सो दे डोंट फोकस ऑन करियर. तो इस टाइम पे गर्ल्स, वी कांट चेंज दिस. देखो आप और मैं ये चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज कम थ्रू लॉन्ग जनरेशंस एंड टाइम, एंड वी आर इनटू दैट. अभी वो बोलते हैं वो सांचे में हम लोग पड़ गए. तो दिस इज द टाइम वेयर गर्ल्स नीड टू चेंज देमसेल्व्स, कि शादी भी हो, मैं हस्बैंड के साथ भी रह के सबकी रेस्पेक्ट करते हुए मैं कैसे आगे बढ़ूं. इट्स नॉट विथ एटीट्यूड. मैं अगर एटीट्यूड दिखाती तो मेरा हस्बैंड वुड हैव नेवर शोन मी दिस वे. तो मैं सबको साथ लेके, पेरेंट्स का भी डिसीजन मैं साथ लेके मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ. दैट थिंग्स शुड कम इन गर्ल्स. एंड बॉयज being a breadwinners, okay, मुझे ये, you know, now we need to stop blaming our parents and somewhere parents blaming themselves कि मुझे पैसा होता तो मैं बड़ी स्कूल को डालती थी. नहीं बाबा, अच्छे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल से भी निकलते हैं. इट्स नॉट ओनली अच्छे स्कूल्स में जाके. सो हम लोग अपने आप को ब्लेम करना स्टॉप करके या फिर दूसरे को ब्लेम करना स्टॉप करके खुद पे काम करें, तो एवरीथिंग इज ओपन फॉर अस. दैट्स व्हाट आई फील लाइक.
सरवत, ये जब बच्चे बार बार फेल होते हैं या फिर वो ड्रॉप आउट होते हैं तो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेज पे आके वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगते हैं। लेकिन जब वो आपकी तरफ आते, मतलब आपके सेंटर की तरफ आते हैं या फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आने की आप भी कोशिश करते हैं, उनके पेरेंट्स बुलाते हैं, तो ऐसे क्या चेंजेस उनके अंदर इमोशनली आप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उसका क्या असर होता है, एंड वेयर दे हैव रीच्ड सो फार? एंड यू नो वन थिंग हियर, जब बच्चा आता है फेल्यूर्स होके, बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास आते हैं दे कम विद लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं रहती। एक बार जब उनमें, ओनली थिंग इज स्टार्टिंग में उन लोगों को बहुत पैम्पर करते हैं हम लोग, यू डू दिस, ऐसा होता है, वी टेक देम टू इंडस्ट्रियल विजिट, ऐसा नहीं ऐसा। एंड एक चीज हमारे बच्चों में ये भी होती है कि आई टोल्ड यू ना, ब्लेमिंग आवरसेल्फ, अरे मैं पैसे वाले का होता तो ये होता, मैं वो होता। तो वो काउंसलिंग सेशंस एंड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक तरीका है, वेयर वी बिल्ड ऑन देम। वो होने के बाद जब वो फेलियर स्टूडेंट 85% लेके आता, एंड यू नो समवेयर वो वी वो देखते हैं कि इनका पेन पॉइंट कहाँ पे है। स्कूल ने बोल दिया कि ये बच्चा कर ही नहीं सकता, तो नहीं बेटा, वो स्कूल को ले जाके हम लोग आपका मार्क्स कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि you have काबिलियत and no way you are lesser than anybody else, and we are there to celebrate you, we are there to stand up with you, we are there to support you, and they are doing wonders. बिकॉज एक टीम था मेरे पास, अराउंड 2021 की बैच थी, एक अराउंड 7 to 8 बॉयज थे। वो ये जो बोलते हैं ना, स्पॉइल्ड बॉयज ऑन द रोड्स एंड दे कैन नॉट डू, हर कोई गाली दे, यू नो मेरे अपने जो यहाँ पे आके जाते थे, ये बच्चों को लेके नहीं पढ़ा सकते थे, आज वो बच्चे आके दूसरे बच्चों को ट्रेन कर। ओनली थिंग इज आई वाज बिट फ्रेंडली विद देम एंड दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन मी। आज 10th करे, 11th करे, 12th करे, आज एक एक बच्चा भी ऐसे ऐसे स्ट्रीम में है, इफ यू सी टुडे यू विल नॉट इमेजिन, यू विल नॉट से अरे ये बच्चा ऐसा था क्या। सो दैट्स वेयर एक तो पेरेंट एंड बच्चे का कनेक्शन नहीं है यहाँ, समवेयर पेरेंट इज इन देयर वर्ल्ड, बच्चा इज इन देयर वर्ल्ड। तो ये दो लेके आके मिलाना है हम लोगों को, जो एजुकेटर्स हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं, तो वो हम लोग नहीं कर पाए, तो खुद से एक कनेक्शन बना लो बच्चे का, तो वो बच्चे दे डू वंडर्स। दैट्स हाउ आई। जी, मोहल्ले के लेवल पे क्योंकि अक्सर जो ड्रॉपर्स आते हैं वो इस इलाकों से आते हैं, इन इलाकों से, तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हर मस्जिद के पास डेटा होना चाहिए, हर मस्जिद के पास डेटा होना चाहिए कि ये मेरे मोहल्ले के इतने मेरे पास मुसल्ली आते हैं, या फिर इतने लोग हैं, इतने घर हैं, इसमें इतने घर में इतना प्रॉब्लम है, और ये बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। आज हर चीज में हम लोग माशाल्लाह, हर एनजीओ हमारा हर है, रेशन में काम करने वाला है, लीगल एड पे काम करने वाले एनजीओ है, काउंसलिंग करने वाले एनजीओ है, हर कोई है। तो मस्जिद के पास डेटा होना चाहिए कि ये बच्चों को हम लोग कहाँ पे रीडायरेक्ट करें। जी, ये तो क्योंकि मस्जिदों का काम है। आपका जो सफर रहा 6 स्टूडेंट से लेके अराउंड 450 तक, आगे का क्या प्लान है? कुछ एक्सपेंशन मोड में है? एक्सपेंशन ऑफ कोर्स, एक्चुअली इस मेरा स्टार्टिंग से टारगेट था 500 स्टूडेंट्स, हर साल 500 बच्चे रेगुलर स्कूल्स को जाना, ये मेरा टारगेट था स्टार्टिंग से। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इंशाल्लाह दिस ईयर वी विल बी रीचिंग, ये साल हम लोग रीच हो जाएंगे। चैलेंजेस है, अगर एक्सपेंशन के लिए कोई आ रहा है कि वी वांट टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर फॉर इट। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी, हर कदम सोच के नहीं रखती मैं, आगे बढ़ना है बस, बिकॉज दिस इज समथिंग जहां पे आज अब आपने देखा ना, 1000 100,000 इतने बच्चे, 1000+ बच्चे, अगर मदर्स आज जो विडो थी, आज शी इज वर्किंग इन अपोलो मेडिकल स्टोर, शी वाज विडो। PUC, you can you imagine chemistry and physics, 3 children, 3 बच्चों की माँ थी वो, sorry not physics, chemistry and biology, she scored 98%. That is her dedication. And you know एक चीज और easy जो होगा हमारे जॉब में, ये बच्चों के साथ, ये बच्चों का, I tell them life has given you left and right because of which you are here. तो समवेयर लाइफ उनको जो सिखा चुकी है कि ये है बेटा आपका डिफिकल्टी लेवल,
what they want to do by themselves, because of which it is become easy. And if anybody wants, and inshallah, alhamdulillah, now outskirts of Bangalore, mein, Davangere mein we have started, Malur mein we have started, and alhamdulillah, it's growing good. And Davangere mein only the guidance teams, taraf se it's going on well. So inshallah, if at all anything comes forward, we need to put a word to our team, and surely we will take it. Inshallah. Thank you so much, ma'am. It was very inspirational session. क्योंकि आपका टाइम भी हमें लिहाज रखना है, क्योंकि it is working day for you. I am sure you must be tired. लेकिन क्लोज करने से पहले कुछ पॉइंट्स अगर मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं या आपके जहन में कुछ आ रहे हैं कि भाई which you want to communicate either to the students directly or to the educator or the parents or the community in general, ऐसा कुछ है तो आप प्लीज शेयर कीजिए before we close it. Yes, for the students, don't give up. Whole world is there for you if you don't give up. हर चीज आपके लिए है. Just start researching. Now you have just a phone, and use your phones in a better way. And especially when it comes to girls, respect your parents, respect your in-laws, and try your level best to convince them to send you for your education. When it comes to you want to educate or you want to do something in your future. Boys, I don't think so you should give up. That is the main message I want to give for boys, especially boys. They give up for very silly reasons. I don't think so. Boys are, and ये बात एक बहुत सारा ये हो गया है कि boys cannot do, girls will do it. No, it's nothing like that. Boys can do much more than what girls are doing today. And when it comes to parents, think twice, thrice, meet your बच्चे का ट्यूटर, whoever, जो भी आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, उस पे थोड़ा बहुत 1 से 4 बार मिल के फैसला करो कि सही है या गलत है. And for managements, please don't you need to look after the quality. Don't give up on quality. This is what I want to say for all these people who are into the education. Community leaders को आप छोड़ दिए. Community leaders, they are already doing their job. Alhamdulillah, they are bringing the changes. They are accepting the changes. जो accept कर रहे हैं, उसको अमल भी कर लीजिए. और ना अपने लिए ही ना सही, सब आपके अंडर जो भी बच्चे हैं, उनके लिए भी accept कर लीजिए. That's what community leaders required from me. But I don't want to tell anything for politicians. That is, you can say that. ठीक है. Thank you so much, ma'am. आपने अपने बिजी वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला. उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से, इस वीडियो से, इस सेशन से लोगों के अंदर थोड़ा बहुत सोचने के लिए मवाद मिल जाए इस मसले को लेकर. क्योंकि सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, लेकिन ये बच्चे जब एजुकेशन और मेन स्ट्रीम से जब गिर जाते हैं या हट जाते हैं, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है या बेकारीपन आता है, उसके बाद जो मसाइल आते हैं सोसाइटी में, उसको भी एड्रेस करने के लिए हमें एक आसान तरीका मिल जाता है. तो अगर हम इसको यहाँ ठीक करते हैं तो बहुत से दूसरे समाजी मसाइल जो हैं उनको ठीक करने में. And one more thing which I missed यहाँ पे, use your mobiles in a better way. आजकल ये फोन भी एक रीजन बन गया है, और हमारे बच्चों के दिमाग में ये है कि मैं यूट्यूबर बन के पैसा कमा लूंगा, मैं फेसबुकर बन के मैं रील्स बना के पैसा कमा लूंगा, एंड आई डोंट रिक्वायर टू स्टडी, मुझे मेरे पास फोन है. सो इवन गर्ल्स, सो यहाँ पे है ना, वी आर स्पॉइलिंग एवरीथिंग. आप अपनी लाइफ को किस तरीके, कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, यू विल नॉट नो. तो ये चीज का सही इस्तेमाल आप लोग कर लिए, एंड इसमें बहुत सारे अच्छी चीजें हैं. तो वो चीज है ना, नॉट ओनली मी एज आई थिंक यू आर अ कोच, यू विल बेटर एडवाइस ऑन दिस. दिस इज स्पॉइलिंग अवर, एंड पेरेंट्स प्लीज डोंट गिव द फोन्स टिल दे आर 12th. मोबाइल का नाम लाके आपने मुझे छेड़ दिया. अक्सर जो काउंसलिंग के लिए आते हैं टीनेजर्स वगैरह, मसला यही है मोबाइल का, इनअप्रोप्रिएट यूजेज जो है. तो उसमें उनको पता ही नहीं है कि रील्स के चक्कर में या शॉर्ट्स के चक्कर में कितना टाइम जा रहा है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम, व्हाट डू यू वॉच. आई डोंट क्रिटिसाइज देम कि भाई मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं. मैं पूछता हूँ कि भाई आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं. आंसर इज शॉर्ट्स या रील्स. ठीक है. तो फिर मैं पूछता हूँ कि किस तरह के
शॉर्ट्स है भी, मतलब कि जो भी आता है। सो दिस इज द वे वी आर कंज्यूमिंग। तो आप इमेजिन कीजिए, इनको पता ही नहीं कि भाई क्या देखना है, जो आ रहा है वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब एंड कि इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स भी फोन आसानी से बच्चों को दे रहे हैं। जी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, फोन भरने के लिए फोन ला के देने के लिए पैसा है हमारे पेरेंट्स के पास। सो जी दैट थिंग, अगर इफ यू वांट सिक्योरिटी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, आपको ये बात जानना है बच्चा का है, यू हैव दैट छोटा वाला फोन्स विच भी वो ओल्ड जमाने का था, दैट फोन्स आई थिंक दैट्स इज मोर देन सफिशिएंट एनफ टू know where your child is or trap where they are. These phones are spoiling them, spoiling many students, many children, many generations. It's सही। आई थिंक वी वो नीड टू बी चीज वेरी आपकी तरफ सीरियस से ऑन भी दैट एडवाइस कर एस्पेक्ट। दीजिए। जी, बहुत सीरियसली उसको लेना है। या उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स भी इस मामले में थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। सिर्फ मोबाइल थमाना, इट्स लाइक उनके हाथ में चाकू या बंदूक दे दें कि उसके करना क्या है। अब चाकू है तो उससे आप फ्रूट भी काट सकते हैं, वेजिटेबल्स भी काट सकते हैं, लेकिन किसी को हार्म भी कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वो अच्छी चीजें छोड़ के गलत इस्तेमाल करने लग जाएं, तो फिर हम भी उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं होते हैं कि भाई हमने ही उनको हाथ में वो टूल थमाया है। तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस जरूरी है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स आल्सो नीड टू बी सिंसियर इनफ कि भाई जब पेरेंट्स कुछ उम्मीदें रख के आपको कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छा खाने पीने के लिए दे रहे हैं, अच्छा मोबाइल दिए हैं, थिंकिंग कि भाई बच्चा इससे कुछ यूजफुल काम निकालेगा, लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल टू इंटरेक्ट विथ यू, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी जो है कुछ ना कुछ एज ए टेक होम मैसेज एटलीस्ट उस बारे में सोचेंगे कि ये मसला है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस पे भी गौर करने की जरूरत है, और उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप मतलब लोग हम तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन मैम, थैंक यू सो मच।